गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट। यस सर। हम लोग लास्ट जो हमने डिस्कशन करा था, दैट वाज द इक्विलिब्रियम ऑफ द लिक्विड एंड इन विच वी टॉक्ड अबाउट द प्रेशर। हमने प्रेशर पे बात किया था, इफ यू रिमेम्बर वी टॉक्ड अबाउट द प्रेशर, इज इट राइट? यस सर। और मैंने आपसे ये बोला था कि हाइट मतलब डेप्थ, इफ यू गो डाउनवर्ड्स इन अ लिक्विड the pressure increases, and if you go upwards in the same liquid, the pressure decreases. Means while you are going down the liquid, you will take the pressure to be positive, and when you go going up the liquid, you will take the pressure to be negative. ठीक है? And at equilibrium or in the static liquid, pressure at the same height will always be same. That means it will not vary along x-axis. Pressure always varies along y-axis, right? So I have one more question for you. Solve that question first, and then we will talk about the next concepts, which is accelerated liquid. But before doing that, solve one more question, which is based on the last concept that we have discussed in the last class. So the question is this way. Okay, let us say it's a tube, U-shaped tube, and this is a tube, and liquids are filled, and we have two separators here. One is this separator, the another is this separator. Don't get confused. You can neglect this thickness, you can neglect this thickness. Okay, you can neglect this thickness. Question is, there is say some liquid of density, let's say 3 rho. In this horizontal part there is liquid of density, let's say rho. I'll rather make it blue. There is a liquid of density 2 rho in this part, and the last one, here is the liquid of density rho, and the height of the liquid in both the parts is same. Let's say it is L, and let's say it is also L. Okay, although you will not need this length, but still I'm giving you it is also L. After the separator are removed, this is a separator which is separating the immiscible liquids. Liquids are immiscible means they cannot be mixed, like water and mustard oil, like water and honey. You cannot mix. Means if you place honey over water, so they will make two separate layers, and you can see those two separate layers. They will be visible to you. Such liquids are called as immiscible liquids. So these are two separators. One separator is there on the right side, and the another separator is on the left side. So this is a separator again. The question is, after separator is removed, after separator is removed, find the height of liquids that will rise. What happened in the right vertical part? क्या क्या हुआ बच्चे? बच्चे, अरे अपने ही में बात कर रहे हैं. जहरा, बतूल, शमीम, सलील, नासिर, जितिन, जपनीत, फातिमा, दीपांशी, दमन, सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. यस सर. तो आप लोगों को मैं 45 सेकंड्स दे रहा हूं टू सॉल्व दिस. आई एम गिविंग यू 45 सेकंड्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड गिव मी आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
चलिए मैं बताता हूँ, आपने नोट कर लिया था ये क्वेश्चन? Because I'll erase, if you have noted down this question, I'll erase all this. Noted, sir. ठीक है, तो मैं इसको erase कर रहा हूँ बेटा. I'll make a fresh diagram to make you understand the solution of this question. तो इसको मैं erase करके मैं एक fresh diagram पे आ रहा हूँ कि भाई ये आपको मैंने बोला था ये ट्यूब है. अब जब आप सेपरेटर हटाओगे ना बेटा, सेपरेटर हटाओगे तो समझो, जैसे ही आप सेपरेटर हटाओगे तो होगा क्या. तो आपको मालूम है कि इधर वाली डेंसिटी जो थी that was 3 रो, and this density of the liquid was 2 रो, and the density on the right part is रो. So obviously this liquid has more pressure, है ना. इसकी डेंसिटी 3 टाइम्स ऑफ रो है, तो इसका प्रेशर ज्यादा है. इस वाले लिक्विड को ये क्या करेगा, इधर से धक्का देगा. मतलब अल्टीमेटली लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वर्टिकल पार्ट टू द राइट वर्टिकल Right. पार्ट. इज इट क्लियर? Yes, sir. क्योंकि इसका वेट सबसे ज्यादा है, इससे कम इसका है, फिर उसके बाद इसका है. तो अगर मान लो ये लिक्विड कम्स डाउन बाय अ हाइट x, तो आप समझना, मैंने आपसे बोला था कि इस हॉरिजॉन्टल पार्ट में यहां तक ये पूरी हॉरिजॉन्टल पार्ट में जो लिक्विड थी दैट वाज 2 रो. तो सोचो जैसे ही ये x हाइट नीचे आएगा, ये ब्लू लिक्विड को क्या करेगा, यहां से धक्का देगा. तो क्या होगा, ये जो ब्लू वाली लिक्विड है, ये ब्लू वाली लिक्विड यहां से भागेगी, Right. है ना, राइट की तरफ भागेगी. मतलब ये वाला जो होगा ये यहां तक कुछ पोर्शन में आ जाएगा, ये वाली रेड वाली लिक्विड यहां तक कुछ पोर्शन में आ जाएगी. अब ये जो ब्लू लिक्विड गई है वो कहां जाके एकोमोडेट होगी, तो जितना पोर्शन यहां से गया है वो पोर्शन यहां आके एकोमोडेट होगा. एंड व्हाट विल बी द हाइट in which this blue liquid will accommodate on the right side. So this height will also be x, क्योंकि यहाँ से x displace हुआ तो यहाँ x जाके यहाँ accommodate होगा. अब इसके ऊपर कौन सी लिक्विड है, तो इसके ऊपर वो वाली ब्लैक वाली लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 2 रो थी, सॉरी रो थी, और इसकी हाइट कितनी थी, तो इसकी L हाइट plus. L थी. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो मैं फिर से कोई पॉइंट अज्यूम कर लूं. लेट से मैं यहाँ पर कोई पॉइंट अज्यूम करता हूँ, तो इस पॉइंट पे मैं कहूंगा कि नेट प्रेशर ड्यू टू दिस रेड वाली लिक्विड एंड द प्रेशर एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस ब्लैक एज वेल एज दिस ब्लू वाली लिक्विड, इन दोनों का जो साइड से लगने वाला प्रेशर और इस साइड से लगने, सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था ऑटोमेटिकली. देखिए मैं आपको ये सब समझा चुका था, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा ये डायग्राम, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो गया था. ये ऐसे था, यहाँ ऐसे था. बच्चों जो मैंने समझाया था डिस्कनेक्ट होने से पहले, वो आपके दिमाग में बात समझ आ गई थी? Yes, sir. ठीक है यस बेटा. सर। जी सर. ओके बच्चे, ये ब्लू लिक्विड यहाँ से कुपच 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 कुपच, तो ये वाला x था, ये मैंने बोला ये h माइनस x होगा. तो यहाँ से ये कुपच 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 कुपच, तो ये l होगा. मैंने बोला कोई पॉइंट यहाँ पर अज्यूम कर लो, तो देयर विल बी प्रेशर ड्यू टू द height of the liquid column only, there will be no pressure change along x axis. ठीक है, तो देखो इस वाले का 3 रो डेंसिटी है, इस वाले का डेंसिटी 2 रो है, और इस वाले का डेंसिटी रो है. तो इस रेड वाली लिक्विड के कारण इस पॉइंट पे प्रेशर विल बी, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PATM, तो PATM, और नीचे हम जा रहे हैं तो दिस विल बी 3 रो मल्टीप्लाइड बाय G मल्टीप्लाइड बाय H माइनस x, नहीं रादर इट इज L माइनस x, बिकॉज सब में लेंथ वाज L, राइट. तो ये L माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब राइट वाले साइड से जो इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू PATM, नहीं पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ,
इस ब्लू वाली लिक्विड का ट्वाइस ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू एक्स। उसके बाद रो वाले का कितना लिखोगे, प्लस ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाई जी इंटू एल। सही है। लास्ट में हम यहाँ इस पॉइंट पे एक प्रेशर पी एटीएम भी है, तो उसका भी सम इस पॉइंट पे लग रहा होगा, प्लस ऑफ पी एटीएम। बोलो इक्वेशन क्लियर है क्या? इक्वेशन सबको क्लियर है? नहीं बोलोगे तो मैंने, ठीक है। पीएटीएम ने पीएटीएम को मार दिया, रो ने रो को रो से मार दिया, ठीक है। जी ने भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो दिस विल बी इक्वल टू 3l माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ l। तो ये 2l इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू 2l बाई 5 आ रहा है मेरा आंसर। नोट करिए इसको। नोट करके मुझे बता देना, सो दैट आई कैन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। Done, sir. डन, ओके। तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेटेड लिक्विड। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखो टॉपिक डालो, एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड लिक्विड। बात अभी भी समझिएगा, स्टिल द लिक्विड इज नॉट फ्लोइंग। लिक्विड फ्लो नहीं कर रही है। द कंटेनर इन विच द लिक्विड इज केप्ट, दैट वुड बी एक्सेलरेटिंग। माइंड माय वर्ड्स, लिक्विड स्टिल स्टैटिक है, वो फ्लो नहीं कर रही है। जब तक लिक्विड फ्लो नहीं करेगा, लिक्विड डायनेमिक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो लिक्विड इज स्टिल स्टैटिक। इसका मतलब ये है कि मान लो इस कंटेनर में हमने लिक्विड भर दिया, ये लिक्विड भर दिया मेरे बच्चे। इस लिक्विड की डेंसिटी से इट इज रो, ठीक है। लेट से दिस लेंथ इज एल, और मैं इस कंटेनर को एक्सेलरेट करा रहा हूं टुवर्ड्स राइट। देखो कंटेनर भले एक्सेलरेट कर रहा है, बट इसमें लिक्विड फ्लो तो नहीं कर रही है ना, तो ये अभी भी लिक्विड स्टैटिक का ही केस कहलाएगा। सिंपली हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेटिंग लिक्विड है, बिकॉज द कंटेनर इन विच द लिक्विड इज केप्ट, दैट इज एक्सेलरेटिंग। क्लियर हो गई बात? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब अगर इस केस में मैं लिक्विड के अंदर कोई एक पोर्शन कंसीडर कर लूं, मान लो इस लिक्विड का ही एक पोर्शन मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग अ पोर्शन ऑफ द लिक्विड। ये मैंने एक लिक्विड का पोर्शन कंसीडर कर लिया, ठीक है सर। इस लिक्विड के पोर्शन को मैं बाहर दिखा रहा हूं आपको, यहां देखिएगा, ये लिक्विड का पोर्शन, ये लेंथ मैं कह रहा हूं dx है, समझ रहे हो। और ये जो मैंने लिक्विड का पोर्शन कंसीडर किया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो dA है, ठीक है बच्चा। Yes, sir. बिकॉज Yes, sir. बिकॉज द होल लिक्विड इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब है कि इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट अगर मैं देखूं, तो दिस एलिमेंट विल आल्सो बी एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। ये एलिमेंट भी a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो आपको मालूम है एक बात, कि अगर एक्सेलरेशन है तो देयर मस्ट बी अ नेट फोर्स। मतलब एफ नेट यहाँ पर जीरो तो नहीं हो सकता ना सर। अच्छा, इससे पहले जब ये लिक्विड एक्सेलरेट नहीं कर रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं अंदर कोई एलिमेंट कंसीडर कर लूं, तो इधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स दे मस्ट बी बैलेंस्ड। बट ये लिक्विड एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब इसका एलिमेंट एक्सेलरेट कर रहा है, तो इधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स इक्वल नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? बिकॉज Yes, इफ sir. एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो, बट इसका एक्सेलरेशन जीरो तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। नहीं आया रे, नहीं आया, नहीं आया रे, नहीं आया। नेट फोर्स जीरो है, नहीं है? नहीं है, sir. नहीं है। दमन भाई, दमन, जपनीत, Yes, sir.
समझ आ गई बात? Yes, sir. ठीक है नासिर, सर। समझ रहे हो? यस सर, यस सर। कहीं अगर नहीं समझ में आए एकदम बिंदास पूछना है। चलिए तो मैं Yes, आपसे ये कहता हूँ कि भाई अगर नेट फोर्स है तो मैं इसके लिए ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि इधर से मान लो प्रेशर इज P1, इधर से प्रेशर इज P2। तो ये प्रेशर हमने अज्यूम करा है फ्रॉम टू साइड्स। तो अगर हमने प्रेशर अज्यूम करा है तो फोर्सेस कितना होगा? तो इस एंड पे जो फोर्स होगा इसको मैं फोर्स F1 कह रहा हूँ, तो दिस कैन बी रिटन एज P1 मल्टीप्लाइड बाय DA और फोर्स 2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाइड बाय DA। तो इस पे लगने वाला F नेट की वैल्यू को मैं F1 माइनस F2 लिख सकता हूँ या नहीं मेरे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा F1 में से F2 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको क्यों सब्ट्रैक्ट किया? द रीजन इज कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट। अगर एक्सेलरेशन राइट साइड पे है इसका मतलब है कि इधर वाला फोर्स शुड बी ग्रेटर। F1 देखो, ये अगर कोई बॉडी है और इस पे एक फोर्स लग रहा है F1 और इधर से एक फोर्स लग रहा है F2 और एक्सेलरेशन अगर इधर है तो मैं कहूंगा कि F1 इज ग्रेटर देन F2, तभी तो एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मैं इस बात को अब ऐसे लिख सकता हूं कि P1 मल्टीप्लाइड बाय P2, DA दोनों में कॉमन ले लो, तो दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन किसका? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट। तो मैं लिखूंगा P1 माइनस ऑफ P2 मल्टीप्लाइड बाय DA। मास को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि डेंसिटी multiplied by area multiplied by length multiplied by A. Did you understand? Yes, sir. ठीक है, area will cancel out by this area, तो P1 minus of P2 will be equal to rho multiplied by dx multiplied by A लिख सकता हूं। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा प्रेशर की इक्वेशन बनेगी, प्रेशर इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 प्लस ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय dx लिख सकता हूं। ये रिजल्ट क्लियर है? Yes, sir. तो पहले यहां तक रिजल्ट नोट करो, मैं इसका एप्लीकेशन सिखाता हूं। Excuse me, sir. यस Sir, acceleration कहाँ पे? सॉरी, Acceleration. यस एक्सेलरेशन छूट गया वो होगा बेटा, सॉरी फॉर yes, दैट। sir. यस यस थैंक यू। Done, sir. ओके, तो अब एक बात, छोटा सा पॉइंट, फिर उसके बाद मैं इसका एप्लीकेशन समझाता हूं। देखिए, इफ यू लुक ऑन दिस प्रेशर फॉर्मूला, तो यू कैन सी दैट कि मैंने ये जो एलिमेंट लिया था, मैंने ये माना था कि दिस वाज प्रेशर P1 and this was pressure P2, and I can see that कि P1 from this equation, see I can see that कि P1 is greater than P2 and the acceleration of the element was towards right. मतलब the pressure which is P1 is greater than this pressure P2. यही आ रहा है क्या? Yes, मैंने कुछ गलत तो sir. नहीं कर लिया है? देख लेना एक बार अच्छे से। मैंने P1 किस साइड पे लिया था, राइट वाले पे या लेफ्ट वाले पे? Left वाले पे. ठीक है, लेफ्ट वाले। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इस पॉइंट के प्रेशर से कम है। मतलब इफ आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, the pressures will be decreasing
at the points which are in the direction of acceleration. मतलब अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, इसको 3 मान लूं, इसको 4 मान लूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि P1 will be greater than P2 will be greater than P3 will be greater than P4. समझ आई बात? This means that if I am going in the direction of acceleration, pressure decreases. फिर से सुनो, if I am going in the direction of acceleration, pressure decreases. And if I am going in the opposite direction of acceleration, pressure increases. ठीक है, ये आपको याद रखना है. Pressure decreases in the direction of acceleration. This is my first point. Now I come to the second point, कि how to apply this relation. कि अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि this is a tube and this tube has a length of say L. इस ट्यूब का लेंथ L है and this tube is accelerating towards right with an acceleration A. अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर pressure is something P1 और मुझसे पूछा जाए यहाँ पर pressure will be equal to what? P2 is equal to what? ठीक है, समझ आ रही बात? मुझे P2 निकालना है, means P2 is in the direction of acceleration. मतलब P2 जो है वो acceleration के direction में ये point है ना, तो obvious सी बात है कि P2 पे जो pressure होगा उसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि P2 is equal to P1 minus of rho multiplied by dx multiplied by see this equation. Is it clear? Yes, sir. इसका मतलब I can write P2 is equal to P1 minus of density of the liquid is rho, acceleration is a, and dx का मतलब जब हमने एलिमेंट की लेंथ dx लिया था तो यहाँ पे dx लिखा था, अब यहाँ पर ये लेंथ कितना है L, तो हम इसको L लिख लेंगे. ठीक है, दिस इज द प्रेशर. इसका मतलब इन अ जनरल आई कैन से दैट के opposite in the direction of acceleration pressure decreases and it will be written by this formula. बट अगर आप ऐसे सोचो कि अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि मान लो मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर जो प्रेशर है दिस इज P1 या P2 ही रहने देता हूं, और मैं इस पॉइंट पे प्रेशर पूछता हूं, दिस लेंथ इज L and this is going towards right, the density is rho obviously. तो मैं अगर P1 लिखता तो P1 क्या लिखता, P2 जो इस पॉइंट पे प्रेशर है प्लस रो AL लिखता. ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर डिक्रीज करेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया बेटा. ये दोनों छोटे से पॉइंट्स को नोट करो तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं. Done, sir. डन. ठीक है, तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक छोटी सी बात पे आते हैं कि मैंने आपसे ये बोला कि प्रेशर इन द डायरेक्शन विल बी डिक्रीजिंग एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इट वुड बी इंक्रीजिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस, ये तो हम प्रेशर लिखना हमें आ गया. अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि भाई मान लो इफ इट्स अ कंटेनर and this is filled with the liquid and this container is given an acceleration towards right A. होता क्या है जब हम किसी कंटेनर में लिक्विड भरें और उसको हम एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दें, तो ऑब्वियसली हमेशा याद रखना कि द सरफेस व्हिच वाज इनिशियली हॉरिजॉन्टल विदाउट एनी एक्सेलरेशन, that surface will no longer be horizontal, rather it will get inclined. ये incline हो जाएगा, this surface will be inclined. क्लियर हो गई बात? आप ऐसा करके देख सकते हो. अगर आप किसी कंटेनर में पानी भरो, किसी बकेट में पानी भरो और उस बकेट को आप पुल करो, तो आप ये देखोगे कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट बिहाइंड. मतलब लेफ्ट बिहाइंड का मतलब विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बकेट. मतलब किसी भी कंटेनर में अगर मैं लिक्विड भरूं और उसको मैं एक्सेलरेट करा दूं तो जो सरफेस है वो इंक्लाइंड हो जाता है और मैक्सिमम जो लिक्विड का पोर्शन है वो किधर भागता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. अब मुझे इस केस में पता करना है कि व्हाट विल बी दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. मतलब
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस थीटा। इस केस में हमें पता करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस केस Yes, में sir. मुझे थीटा पता करना है, और थीटा पता करने के लिए देखिए मैं करूंगा क्या। पहले तो मैं एक पार्टिकल अज्यूम कर लूंगा इसी लिक्विड का। लेट से इस पार्टिकल का मास इज m, और मैं ये अज्यूम करूंगा कि मैं इसी कंटेनर में बैठ गया हूं। आई एम सिटिंग इनसाइड द कंटेनर। क्लियर है? मैं इसी कंटेनर में बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं चीजों को, मैं ग्राउंड पे बैठ के नहीं कर रहा हूं। आई एम सिटिंग इनसाइड द कंटेनर। तो मुझे पहला पॉइंट आप ये बताओ कि इफ आई एम सिटिंग इनसाइड द कंटेनर, मैं इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं या नॉन इनर्शियल? हैव यू हर्ड इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल? Yes. अब मुझे एक बात बताओ कि इफ आई एम सिटिंग इनसाइड द कंटेनर, तो मैं इनर्शियल ऑब्जर्वर हूं या नॉन इनर्शियल? Inertial observer. नो, नॉन इनर्शियल। नॉन मतलब फॉर इनर्शियल। मी नॉन इनर्शियल, फॉर मी Yeah, because water is for me with all the forces I'll have to take the pseudo force also. क्लियर है? और pseudo force की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। मतलब if the container is accelerating towards right, तो pseudo force की एक डायरेक्शन होगी, pseudo force on this particle will be taken towards left। अगर ये कंटेनर लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करता तो pseudo force राइट की तरफ होता। समझे? अच्छा, इस पार्टिकल पे एक और फोर्स कौन सा होगा? तो देयर विल बी वन मोर फोर्स व्हिच विल बी यस mg। अब बात समझना, ये लिक्विड अभी स्टैटिक है या फ्लो कर रही है? Static. flow. स्टैटिक है ना? अभी भी स्टैटिक है, ऑल्दो कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग बट लिक्विड इज स्टैटिक। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि फॉर स्टैटिक लिक्विड forces along the surface of liquid must always be balanced। मतलब सरफेस के अलोंग जो फोर्सेस हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए? बैलेंस्ड। बिकॉज अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो एक नेट फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या कराने लग जाएगा? लिक्विड को फ्लो कराने लग जाएगा। तो मतलब जो सरफेस है ना लिक्विड का, उसके अलोंग जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस होने चाहिए। क्लियर? अब देखो ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये एंगल कितना होगा पहले तो मुझे ये बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा भाई, थीटा ही क्या होगा। ये होगा सर? एडजस्ट। ठीक है, ये भी थीटा होगा, है ना? ये लाइन ऐसे है, चाहे यहाँ पर हम एंगल देखें या यहाँ पर देखें, ये थीटा ही होता है। ये तो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है। एनीवेज, तो MA का कंपोनेंट अगर मैं इस लाइन पे ले लूं सरफेस के अलोंग, तो ये MA cos थीटा होगा या नहीं होगा? नहीं आया रे, नहीं आया, नहीं आया रे, नहीं आया। नहीं आया ना तुमको? आगे sir. भाई अगर ये कोई वेक्टर है और इसका कंपोनेंट मुझे इस एक्सिस पे लेना है विच इज एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट r cos थीटा ही तो होगा। यस सर। अच्छा, इस Yes, sir. mg का कंपोनेंट सरफेस के Yes, अलोंग sir. ले रहा हूँ, इस mg का कंपोनेंट सरफेस के अलोंग ले रहा हूँ, mg का। तो इस mg का कंपोनेंट सरफेस के अलोंग mg sin थीटा होता है। आपने सुना होगा लॉज ऑफ मोशन में, Yes. इंक्लाइंड सरफेस पे याद करो, है ना? अब मैंने क्या बोला? ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि MA cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा। m से m सन्नाटा, ठीक है? sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा, Tan theta. Tan यस वेरी theta. गुड, बाई cos थीटा इज इक्वल टू a बाई g, और tan थीटा विल बी इक्वल टू a बाई g। ठीक है? तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स a बाई g। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्लियर हो गया? नोट इट डाउन।
अगर कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज नोट करो। Done, sir. नोट करो। आई विल बी बैक इन 1 minute, गिव मी अ मिनट, आई हैव टू टेक समथिंग। तो आप नोट करो, आई विल बी बैक। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं एक क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो सुने। इट्स अ कंटेनर। अगेन आई एम हैविंग अ कंटेनर। ये कंटेनर कुपच 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 कुपच। दिस हाइट इज h। क्या हुआ? कोई इशू है क्या? नहीं। And the height of this container is also h। क्लियर हो गई बात? ठीक है, height of the container is also h and base of the container is h। clear? Question is what should be the acceleration given to this container? Acceleration given to the container कितना होना चाहिए so that liquid starts coming out of container। डेंसिटी रो मान लेना। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नोट करो, मैं बताता हूँ। Done, sir. ओके, तो लिसन टू द सॉल्यूशन। कि सर एक बात बताओ, इस कंटेनर से लिक्विड कब बाहर निकलने लगेगा? देखो, ये कंटेनर हम राइट की तरफ एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो क्या होगा, लिक्विड किधर भागेगा? लिक्विड का मैक्सिमम पोर्शन लेफ्ट की तरफ भागेगा, ऐसे होगा, ऐसे इधर भागेगा ना मैक्सिमम पोर्शन। तो इससे बाहर कब निकलना शुरू होगा? इससे बाहर तब निकलना शुरू होगा जब लिक्विड पूरा का पूरा यहाँ तक पहुंच जाए। मतलब ये फ्री एंड है, यहाँ से यहाँ तक ये फ्री एंड है। और एक बात याद रख सकते हो कि अप टू द हाइट ऑफ h/2 देयर इज लिक्विड। ठीक है, ये h/2 तक लिक्विड है ना। इस क्वेश्चन में आप ये भी याद रख सकते हो, ये जो लिक्विड मैंने भरा है दिस इज अप टू हाइट ऑफ h/2। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा ये लिक्विड अगर यहाँ पे आ जाए, एकोमोडेट हो जाए सच दैट कि इस साइड पे लिक्विड की हाइट h हो जाए, तो वंस द हाइट ऑफ दिस लिक्विड विल बिकम h ऑन दिस लेफ्ट साइड, इसके बाद अगर लिक्विड थोड़ा सा भी इधर आया तो वो लिक्विड बाहर आने लगेगा या नहीं आने लगेगा? इट विल स्टार्ट स्प्रिंग आउट और नॉट? नहीं आया? Yes, sir. समझ आई बात? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब इस साइड पे ये पूरा जो h/2 है वो पूरा का पूरा किधर आ जाना चाहिए? लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब यहाँ पर भी जो लिक्विड की हाइट है वो कितनी हो जानी चाहिए? h। भाई h/2 अगर ये आएगा तो ये पूरा h/2 इधर आ जाएगा, तो ये पूरी हाइट ऑफ द लिक्विड इस साइड पे h हो जाएगी। और ये बेस भी कितना है? h है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा होगा, ये वाला एंगल, इसको अगर मैं थीटा कहूं तो इस ट्रायंगल में tan थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर इज h, बेस इज आल्सो h। यार, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चों? 1 आई। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। और दूसरा हम जानते हैं कि also tan theta is equal to a by g। Do we know that? Yes, sir. Yes. अभी हमने पढ़ा है। तो these two must be equal। इसका मतलब a by g should be equal to 1। तो a should be equal to कितना? g। This is your answer।
नोट करो, एक और क्वेश्चन पे आता हूँ। Done, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, we have a U-shaped tube again. This is again your U-shaped tube, and we have liquid filled in this. There is a liquid here. ये liquid ऐसे, यहाँ से ये, और यहाँ से ये liquid इधर, और फिर एक liquid यहाँ पर, फिर ये liquid यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप लोग। इधर जो लिक्विड की हाइट है, लेट दिस बी 2h, क्लियर है। इधर जो ये लेंथ है, दिस इज ऑल्सो 2h, और इधर जो लेंथ है, दिस इज h, क्लियर है। द डेंसिटी ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लिक्विड इज 3 रो, द डेंसिटी ऑफ दिस इज से 2 रो, और द डेंसिटी ऑफ दिस इज रो। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ठीक है, इसको रो मान लो चाहे, एंड लेट दिस बी 2 रो। अब आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ दिस कंटेनर इज गिवन एन एक्सेलरेशन g/2, अगर मैंने इस कंटेनर को एक्सेलरेशन दिया, कितना एक्सेलरेशन दिया? g/2 का एक्सेलरेशन दिया, तो व्हाट पोर्शन ऑफ द लिक्विड विल इंक्रीज इन द राइट पार्ट? सॉरी, क्वेश्चन समझ में आ गया? फाइंड द इंक्रीज इन हाइट ऑफ लिक्विड इन लेफ्ट वर्टिकल पार्ट ऑफ ट्यूब। क्वेश्चन नोट करो, मैं सॉल्व करता हूं। Done, sir. हर बच्चा क्वेश्चन नोट करे। अच्छा, कैन यू टेल मी, मैंने ये क्वेश्चन में ये क्यों बोला कि इंक्रीज विल बी इन द लेफ्ट ऑफ द ट्यूब? लेफ्ट पार्ट में हाइट इंक्रीज करेगी, ऐसा क्यों बोला? राइट पार्ट में इंक्रीज नहीं करेगी? क्योंकि प्रेशर ज्यादा होगा। यस, प्रेशर इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज करता है इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर? तो अब मेरी बात समझिएगा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इधर x हाइट इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो ये x हाइट कौन सी लिक्विड का इसमें आया होगा? तो ये x हाइट इस वाली लिक्विड का ही तो आया होगा, इसमें एंटर हुआ होगा। इफ यू वांट मी टू रीड्रॉ, आई विल रीड्रॉ द डायग्राम। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आई विल रीड्रॉ द डायग्राम। देखो, इधर से लिक्विड इधर भागेगी, मानते हो? ठीक है, अब मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं। मैंने बोला ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ऐसे ट्यूब है, क्लियर? ये पूरा ऑलरेडी यहां तक लिक्विड भरा हुआ था, और ये दूसरी लिक्विड है यहां पर। अब अगर ये लिक्विड इधर से इधर आ रही है, तो दिस लिक्विड विच इज इन द हॉरिजॉन्टल पोर्शन विल पुश द लिक्विड इन द लेफ्ट वर्टिकल पार्ट। मतलब ये वाली जो लिक्विड है, ये जो ब्लैक वाली, ये जो 3 रो वाली लिक्विड है, वो ये ऊपर आ जाएगी यहां, और एक्स पोर्शन जो होगा इसका, उस एक्स पोर्शन में कौन सी लिक्विड आएगी? उस एक्स पोर्शन में जो लिक्विड आएगी, दिस विल बी दिस लिक्विड विच हैज डेंसिटी ऑफ रो। यार नहीं आया? Yes, sir. क्लियर? और ये वाली जो लिक्विड है, जो मैंने ऐसे दिखाया था, ये थोड़ा सा और आगे भी बना दो इसको। अब ये वाली जो लिक्विड है, जो मैंने ऐसे दिखाया था, ऐसे ऐसे, वो इधर से
x हाइट नीचे आ जाएगी, ये वाली हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, h माइनस ऑफ x। नहीं आया, आगे सर। आया। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. इसका मतलब Yes, ये sir. वाली जो लिक्विड, ये जो वर्टिकल लाइन से मैंने दिखाया था, ये वाली लिक्विड वाज एक्चुअली अप टू अ लेंथ ऑफ 2h, बट अब उसकी हॉरिजॉन्टल में कितनी लेंथ बच गई, 2h माइनस ऑफ x। ठीक है, और इसमें जो ये x किसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो x ऑक्यूपाई कर लिया 2 रो वाले ने। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर देखना। अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा जो मैं ऊपर लिखूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। तो एक तो यहाँ पर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये PATM लिख सकता हूं। Yes. Then I am going down of the liquid, down the liquid, ठीक है, by a height of h minus x, तो प्रेशर बढ़ेगा, तो 2 रो into g into the height h minus x। अब देखो, अब मैं इधर जा रहा हूं, इधर, ठीक है, एंड आई एम गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इधर है g/2 का, और मैं इधर जा रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? इंक्रीज। देखो मैं यहां तक आ गया हूं, अब आई एम गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। और प्रेशर का वेरिएशन, प्रेशर आपने क्या लिखा था कि एक्सेलरेशन के कारण जो प्रेशर लिखते हैं वो रो इंटू ए इंटू एल लिखते हैं, वेयर ए इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब देखिए प्रेशर हम इस वाले पोर्शन का ड्यू टू एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, इस वाले पोर्शन का, तो प्लस साइन लगाएंगे पहली बात, ट्वाइस ऑफ रो, एक्सेलरेशन इज g/2 मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ कितनी है, तो दिस लेंथ इज x। अब ये वाली लिक्विड मिली मेरे को, इसका एक्सेलरेशन के कारण प्रेशर देखो कैसे लिखेंगे, रो मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज g/2 and the length of this liquid is 2h minus of x। 2h minus x. ठीक है, अब मैं यहां तक पहुंच गया, अब मैं ऊपर जा रहा हूं, तो ऊपर जाऊंगा तो इस वर्टिकल वाली लाइन से जो मैंने दिखाया है उसका कितना लेंथ है इस ट्यूब में, तो x लेंथ है, और मैं ऊपर जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ रो जी एक्स। क्लियर? अब मैं यहां तक आ गया हूं, अब इसके ऊपर कौन सी लिक्विड है, 3 वाली, तो मैं फिर ऊपर जा रहा हूं, तो माइनस ऑफ 3 रो मल्टीप्लाइड बाय g इनटू हाइट, हाइट इज कितना 2h। अब मैं फाइनली कहां पहुंचा, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे फिर से Atmospheric प्रेशर pressure. कौन सा होना चाहिए, P एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करके h निकाल सकते हैं क्या अपन? Yes, sir. ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए। Done, sir. आंसर। सबने नोट कर लिया? Yes, sir. No, sir. Wait. ठीक, ओके, आई एम वेटिंग। ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये तो आपको एक्सेलरेशन के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। कैन आई इरेज? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं, दिस इज कॉल्ड एज रोटेटिंग ट्यूब। रोटेटिंग ट्यूब, आई विल बी हैविंग अ ट्यूब, जो मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ कि आई हैव अ ट्यूब लाइक दिस। ये ट्यूब है एंड इट इज फिल्ड विथ अ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी इज रो, एंड दिस ट्यूब इज मेड टू रोटेट अबाउट वन एंड।
with an angular velocity of omega, and the length of this tube is L. ठीक है? We are supposed to find the pressure at this point. इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? तो मैं एक दो पहले छोटी छोटी बातें आपको समझाऊं, बिकॉज इट विल इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन. तो आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, whenever a body rotates, आपको ये मालूम होगा all the particle of the body goes on a circular path. याद है? Yes, sir. अगर कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उसमें जो भी पार्टिकल होता है वो सर्कुलर पाथ पे जाता है. मैं पहले इस बात को समझाऊंगा आपको, उसके बाद ही इसको हम सॉल्व कर पाएंगे. मान लो ये बॉडी है और इसको मैं कह रहा हूं कि ये रोटेट कर रहा है. अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो ये पार्टिकल क्या करेगा? अगर पूरी बॉडी रोटेट कर रही है तो ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा. यहाँ पर वाला पार्टिकल भी क्या करेगा? सर्कुलर पाथ पे घूमेगा. Circular path. If the whole body is rotating with omega, so all the particle will have same angular velocity of omega. But हर पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है v for the particles will not be same, because v क्या होता है? ओमेगा इनटू रेडियस होता है. ये इस वाले पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस अलग है, और इस वाले पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस अलग है. मान लो ये r है और ये r1 है, तो इस वाले पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी v इज इक्वल टू ओमेगा r, बट इस वाले पार्टिकल के लिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा r1 होगी. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Next Yes, point. sir. Point number next. If a particle goes on a circular path, it always has an acceleration towards the center, and that acceleration is called as centripetal acceleration. And this centripetal acceleration is written as omega square multiplied by the radius. Clear? As this particle has different radius and this particle has different radius, so centripetal acceleration for this particle as well as for this particle will be different. Is it correct? Yes, sir. ठीक है. तो मैंने आपको दो बातें समझाया कि whenever a body rotates, all the particles of that body goes on the circular path with different radius. Hence their centripetal acceleration will also be different. Clear? इसका मतलब बेटा, अगर मैं यहां पर इस ट्यूब में लिक्विड का ये पोर्शन अज्यूम कर लूं एट अ डिस्टेंस ऑफ x, से दिस इज dx. मैंने एक पोर्शन अज्यूम कर लिया लिक्विड का एट अ डिस्टेंस ऑफ x, और इस लिक्विड का जो पोर्शन है उसकी थिकनेस कितनी है? dx. और इस पोर्शन को मैं अलग करके दिखा दूं आपको. यहाँ पर ये dx दिख रहा है सबको? किसी के मन में कोई प्रश्न? Yes, sir. No. ठीक है. तो इस पॉइंट पे इधर वाली जो लिक्विड है ये, वो ऐसे प्रेशर लगा रही होगी, और इस साइड वाली जो लिक्विड है वो इस पे ऐसे प्रेशर लगा रही होगी. ठीक है. और मैं एक बात और ये कह सकता हूं कि अगर मैं इस प्रेशर को P अज्यूम कर लूं, तो ये वाला जो प्रेशर होगा, ये वाला प्रेशर, दिस विल बी P प्लस ऑफ dP. Why it will be P plus dP? Because ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट. नहीं आया? समझ में आई बात? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज करेगा. देखो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, तो इस डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज करेगा. तो इधर अगर P प्लस dP है तो इधर P होगा, मतलब इस वाले से इधर प्रेशर कम होगा. करेक्ट है? तो इसका मतलब Yes, नेट sir. प्रेशर अगर मैं लिखूं तो P नेट विल बी इक्वल टू dP. तो अगर मैं नेट फोर्स लिखूं F नेट, तो नेट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, और एरिया मैंने इसका कुछ नहीं माना है, कुछ माना था? नहीं माना था. तो मान लो एरिया इज A, मान लो एरिया इज A. ठीक है. एंड दिस पार्टिकल इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ना. Yes, sir. तो फोर्स मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब dP इज इनटू A इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x. पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, फोर्स वो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है,
और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने अभी क्या बताया था आपको, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया, इसको मास से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो फोर्स आएगा। जी सर। Yes, sir. तो इस एलिमेंट का मास होगा कितना, तो देखो dp मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू मास। मास याद करो कि मास को हम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। Yes, sir. डेंसिटी ऑफ लिक्विड मैंने रो माना है, वॉल्यूम को मैं a इंटू dx लिख सकता हूं क्या, वेयर Yes. a इज एरिया Area. एंड dx इज इट्स लेंथ। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इनटू x। a विल कैंसिल आउट a। यहां तक समझ आया है, क्योंकि इसके बाद अब खत्म हो गया सब कुछ। Yes, sir. यस सर। रो इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो फाइनली हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, डोंट वरी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। क्लियर है? इस पॉइंट पे प्रेशर 0 है, क्यों? क्योंकि इधर कोई लिक्विड नहीं है तो इधर कोई प्रेशर नहीं होगा, तो इस पॉइंट पे प्रेशर 0 है। इस पॉइंट का प्रेशर हमें बताना है, लेट दैट बी पी। और यहां पर रो और ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये बाहर कर दिया, अंदर क्या रहेगा, एक्स dx। जहां पर प्रेशर 0 है वहां पर एल एक्स की वैल्यू 0 है, और जहां पर प्रेशर P निकालना है वहां पर x बढ़ के कितना हो गया, L। तो ये 0 से L यार आ गया। तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना आएगा, रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। Yes, sir. उसमें Yes, अपर sir. लिमिट पुट करो तो एल स्क्वायर हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करो तो 0 हो जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। देखो पहले कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ। अगर कोई स्टेप ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है तो पूछो। Done, sir. 0 to L integration. बोलो बोलो बोलो, घबराओ नहीं, बोलो। मैं इंटीग्रेशन भी सिखा दूंगा, डोंट वरी। कुछ पूछना चाह रहे हो? ये x is equal to 0 to L इंटीग्रेट किया ना सर, 0 से x equal to 0 से। हाँ, क्यों किया बेटा? क्योंकि अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ इस ट्यूब की लेंथ L है, तो मैं यहाँ x 0 कह सकता हूँ और यहाँ पहुंच के x को L कह सकता हूँ या नहीं? Yes, That is why sir. I've integrated it from 0 to L. अच्छा, इस x 0 पे प्रेशर कितना होगा, 0, बिकॉज लिक्विड तो इसके अंदर है ना, इस साइड पे तो कोई लिक्विड नहीं है जो प्रेशर लगाए, तो इसलिए यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होगा। Yes. यहाँ पर प्रेशर होगा जो हम निकाल रहे हैं, एंड दैट प्रेशर इज P। तो जब x 0 है तो प्रेशर 0 है, जब x की वैल्यू L हो गई तो प्रेशर कितना है, यही हमें निकालना है। क्लियर? यस सर। एवरीवन जो भी Clear, कनेक्टेड है sir. सबको Yes, sir. Yes, sir. Clear. ठीक है। तो आपका टाइम हो गया है, तो आज यहीं तक रहने दो, रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir.